Okay, good morning, sixth standard. So we were doing chapter 2 of history, that is early humans. We have covered the topic, the definition of Paleolithic and the features of Paleolithic. Now today we are going to study the new period, that is Mesolithic period, and how the fire was discovered during Paleolithic period. So the fire was an accident, you can say that. It was not discovered. It was by the scientist or the archaeologist. They said that he accidentally rubbing of stones, with that spark it has burned the dry leaves, and because of this fire was discovered. इसका मतलब है कि वो ऐसा कह रहे हैं कि शायद दो पत्थर आपस में टकरा गए और जिससे कि स्पार्क निकला, जो आसपास सूखे पत्ते थे, पेड़ थे, वो से जल गए। इस तरीके से क्या हो गया, फायर डिस्कवर हो गया। सो व्हेन द फायर वाज डिस्कवर्ड, इट वॉज सेड दैट, इट इज़ नॉट इन दिस बुक बट इट वॉज सेड दैट कि जब आग लग गई अचानक से जंगल में, तो कुछ एनिमल्स थे जो क्या हो गए, जल गए। तो व्हेन द अर्ली ह्यूमंस दे वर जस्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे हैव ईटन दिस मीट, सो दे फाइंड इट वेरी टेस्टी। सो व्हाट दे हैव लर्न कि फायर से क्या कर सकते हैं, वो अपने एनिमल्स को पका के खा सकते हैं, जो उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट होगा एज़ कम्पेयर टू ईटिंग अ रॉ मीट। सो they started know how to control this fire. Now slowly they have learned how to control fire and how we have to use the fire. So generally there are three ways from where they have started using the fire. First, they started making their food cooked in the fire so that they can have a tastier food rather than eating a raw meat. Second, they were living in caves, as I already explained you that they were living in caves, and outside they lit fire so that they can protect themselves from wild animals. So the fire was helping them to protect them from wild animals. So third one is the fire keep them warm also from the cold weather. So three uses of fire for early men was cooking food, second protecting themselves from wild animals, three protecting themselves from cold weather, making them warm. So these were the uses of the fire. Now the art of the Paleolithic period. Now earlier I have explained you that if you visit Bhimbetka in Madhya Pradesh, you can find a lot of historical things there. You can see everything, the paintings and the art also. So in your book it is mentioned that inside the cave lot of paintings were there in Bhimbetka. It was discovered, or it was said a heritage site by UNESCO, who has visited Madhya Pradesh. The paintings depict the scene of hunting. मीन्स जो पेंटिंग्स की गई थी गुफाओं के अंदर, वो क्या दिखाती थी, किस तरीके से हंट किया जाता था, लोग कैसे डांस करते थे, ड्रम बजाते थे, एनिमल्स को वो ठीक करते थे. ऑल दीज थिंग्स वर डिपिक्टेड ऑन द पेंटिंग्स विच वर डन ऑन द वॉल ऑफ द केव्स. नाउ द कलर्स विच वर यूज फॉर दैट पेंटिंग, वो जनरली रेड कलर, वाइट कलर के होते थे, ग्रीन और येलो भी होते थे. लोग मानते थे कि वो ब्लैक कलर का यूज़ करते थे, चारकोल का. आपने देखा होगा कि लकड़ी जलती है तो वो एक काला टुकड़ा बच जाता है, उससे आप ब्लैक कलर यूज़ कर सकते हैं. फ्लावर्स का या रेड स्टोन को पीस के रेड कलर, इस तरीके से वो कलर बनाते थे, उन पेंटिंग्स पे ड्रॉ करते थे. सो द एग्जाम्पल ऑफ केव पेंटिंग इज देयर ऑन द बुक आई एम शोइंग यू पीपल. So these kinds of painting you can find on the caves. So this depicts lot of things, like in this if you see that person is there who is hunting a deer. So lot many scenes which depict something are there on the cave. The next topic is इम्पॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट्स. मतलब हमको ये साइट्स हैं पुराने अर्ली ह्यूमन्स की कहाँ कहाँ मिलती हैं. जनरली मैंने आपको बताया था कि जो साइट्स हैं वो समुद्र के किनारे पे ही लोग सबसे ज़्यादा रहते थे. समुद्र किनारे जितने भी एरियाज़ हैं वहीं पे आपको पैलियोलिथिक साइट्स मिलेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल हुनशंगाई, कुरनाल नियर कृष्णा रिवर बेड्स ऑफ सोन रिवर इन पंजाब, कश्मीर, नर्मदा वैली, इन सारी वैलीज़ के पास जितने भी जगह हैं वहाँ पे आपको पैलियोलिथिक साइट्स मिल जाएंगे. नाउ द नेक्स्ट पीरियड इज़
मेसोलिथिक। मैंने आपको बताया था मेसो मतलब मिडिल एज, मीन्स द एज बिटवीन पैलियोलिथिक एंड न्यूलिथिक। ना अर्ली ह्यूमंस ना न्यू, उनके बीच का जो टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड द मेसोलिथिक। दिस पीरियड लास्ट टू 10,000 to 8,000 BCE. So again this word is taken from the Greek word. Meso means middle and lithic means age, so the middle stone age. Here also the people were using stone only, but they know how to use, they know how to use it, like they started sharpening the stones. They were using bones also, animal bones for hunting. They make harpoons out of bones of a fish एंड दे स्टार्ट फिशिंग। ये तरीके थे जो मिडिल एज में डिस्कवर हुए थे। जनरल इस टाइम पे जो पैलियोलिथिक मेसोलिथिक में जो वेदर था वो काफ़ी वार्म और ड्राई था। द क्लाइमेटिक चेंजेस बॉट चेंजेस इन द इन्वायरमेंट एंड मेड इट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स टू मूव टू न्यू एरियाज। ऑब्वियसली जहाँ पे गर्म ज़्यादा वहाँ पे लोग रहना प्रेफर नहीं करेंगे। मेसोलिथिक में क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होने लगा, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ड्राई और गर्म होने लगा, तो लोग मूव करने लगे अपनी जगह को छोड़ के। सो फीचर्स ऑफ मेसोलिथिक इज, हमने फीचर्स ऑफ पैलियोलिथिक पढ़ा, अपना फीचर्स ऑफ मेसोलिथिक इज द पीपल नो हाउ टू मेक यूज़ ऑफ देयर टूल्स इन अ बेटर वे। टूल्स का किस तरीके से इस्तेमाल करना है। पहले लोग सिर्फ हंटिंग के लिए ही टूल्स यूज़ करते थे और डिगिंग ऑफ सॉइल, बट यहाँ पे उनको नए नए तरीके आ गए जिससे कि वो टूल्स का यूज़ कर सके। सेकेंड पॉइंट, द टूल्स वर मोर डेलिकेट, मीन्स पहले के जो पत्थर के जो टूल्स थे वगैरह वो बहुत भारी थे, बिकॉज द पीपल वर नॉट नोइंग हाउ टू यूज़ इट। ना मेसोलिथिक में टूल्स हल्के होने शुरू हो गए, बहुत ही लाइट होने शुरू हो गए और बहुत इफेक्टिव थे। थर्ड पॉइंट, फ्लेक टूल्स यूज स्क्रैपर्स एंड नाइफ। फ्लेक टूल्स मैंने क्या बोला था, एक शार्प पत्थर से दूसरे शार्प पत्थर के कोने को शार्प करना, तो उसे क्या बनाते थे वो नाइफ्स और स्क्रैपर्स बनाते, छील स्किन बॉडी एनिमल्स की स्किन छीलने को या फिर उसको फाड़ने के लिए जो टूल्स बनते थे वो मेसोलिथिक में बनने शुरू हो गए। दे स्टार्टेड टू मेक स्मॉलर एंड शार्पर टूल्स कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। छोटे टूल और शार्प टूल बनने लगे जिनको उन्होंने नाम दिया था माइक्रोलिथ्स। तो माइक्रोलिथ्स क्या है, दे आर टाइनी रेजर्स लाइक फ्लेक्स दैट वर फिटेड इनटू वुडन शाफ्ट ऑफ एन एरो और स्पीयर। आपने एरो देखा होगा, पीछे पूरी लकड़ी लगी होती है और आगे क्या लगता है, आयरन का टुकड़ा लगा होता, बहुत ही शार्प। तो उसी तरीके से वो बनाना शुरू हो गए। दे वर द माइक्रोलिथ्स। आई बी शोइंग यू द पिक्चर, इट इज़ देयर ऑन पेज नंबर 12। सो अगर आप ये देखेंगे, दिख रहा है एक वुड है, उसके ऊपर आगे शार्प एक स्टोन लगा हुआ है, ये बोन भी हो सकता है। सो दीज आर द माइक्रोलिथ्स। ओके, so now the last period which we are going to study is Neolithic. Neolithic means new age, so it was lasted from 8,000 to 4,000 BCE. Neo means new and lithic means period, so the new stone age we are going to study. This is also called the new period, and new period means the stone age is going to over. In this the new copper, or you can say new metal is going to be used. That is what is called as Neolithic. So the features of Neolithic we are going to study in chapter number 3 of history. So till read the things which is there. I'll be showing you the marked things which you have to mark and which you have to read.